Yes. Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, sir. Sir. Okay. I am audible and the PPT is visible to you, all of you. Yes, sir. Okay. So we are starting. In the last class, we were discussing about the two-dimensional elements. So we have discussed the three-noded triangle and six-noded triangle, four-noded rectangle, and eight-noded rectangle. So in the today's class, we will prove the shape functions for all of them one by one with the help of serendipity approach and with the help of Lagrange approach both. So let's start with the three-noded triangle. So विजुअल है क्या मेरे ख्याल से अब विजुअल है ना गुड सो आई एम ड्राइंग ए थ्री नोडेड ट्रायंगल ओवर हियर तो द हेडिंग इज शेप फंक्शन फॉर थ्री नोडेड triangle. So I am making a triangle here. This is the triangle. So in the last class we have discussed about the area coordinate. We have discussed about the area coordinate. एक जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. So for this triangle I can say the first coordinate is x1 y1. So these are the Cartesian coordinate. This is point 1, this is point 2, this is point 3. So x2 y2 are the Cartesian coordinate for the node 2. इसके बाद ये माइक बंद कर लीजिए, जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को. And this is x3 y3. ठीक है. So x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the Cartesian coordinate. If I take a point inside over here, so the coordinates are x and y. So what is the relation between x, y and x1, x2, x3 and y1, y2, y3? So I can write x equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3. Here n1, n2 and n3 are the shape functions. n1, n2 and n3 are शेप फंक्शंस. तो इन्हीं को आज हम डिराइव करने वाले हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना. दे आर दी शेप फंक्शंस. ओके. सिमिलरली आई कैन आल्सो राइट y इक्वल टू n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3. तो ये दो फॉर्मूले, वन फॉर x, वन फॉर y. So I am calculating x with the help of Cartesian coordinates for the node 3. All the nodes, and with the help of shape functions. So shape functions are very important. Without shape function I can't do any calculation. So suppose first I discuss some area coordinates. So I am making this triangle again, the same triangle 1 2 3. So if I want to specify the area coordinates, so in the last class we have already understood the area coordinates are 1 0 0 for the node 1, 0 1 0 for the node 2, 0 0 1 for the node 3. Okay. So these area coordinates are basically R, S and T. They are in the form of R, S and T. So what is R? R is A1 divided by A, S is A2 divided by A, and T is A3 divided by A. And what is A1, A2, A3? A1, A2, A3 are the areas which the point P is dividing the whole triangles into three parts. If I join P with 1, P with 2, P with 1, P with 2 and P with 3.
So the whole triangle is divided into 3 areas. So first area is A1 in front of node 1. Second area is A2 in front of node 2, and third area is A3 in front of node 3. So in terms of this R, S and T, we have calculated that area coordinates for the node 1 are 1, 0, 0. It means R equal to 1, S equal to 0, T equal to 0 for the node 1. Similarly here, R equal to 0, S equal to 1, T equal to 0, and here also R equal to 0, S equal to 0 and T equal to 1. ठीक है, तो दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 और एरिया कोऑर्डिनेट्स RST के फॉर्म में होते हैं। तो अब इस पॉइंट के लिए P के लिए R, S और T की वैल्यू क्या होगी? तो इसके जो एरिया कोऑर्डिनेट्स होंगे वो R, S और T हम कहेंगे, RST ना, जनरल एरिया कोऑर्डिनेट्स RST। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने एक पॉइंट रेफरेंस के लिए ले लिया है, P पॉइंट ले लिया है, मैंने कोई और पॉइंट ले सकता हूं, लेट आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट Q ओवर हियर। तो इसके लिए जो एरिया कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो सकते हैं R1, S1, T1, है ना, और आई कैन से RQ, SQ, TQ, Q सफिक्स लगा दिया मैंने क्योंकि पॉइंट का नाम Q है, ठीक है। तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज डिफरेंट एरिया कोऑर्डिनेट्स, for Cartesian coordinate also, for each and every point inside the triangle there is different Cartesian coordinate. तो हर पॉइंट का अपना एक Cartesian coordinate है, हर पॉइंट का अपना एक एरिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिएगा। प्रत्युष है क्या क्लास में? यस सर। हाँ, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, सब क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए अब मैं सीधे सीधे सेफ फंक्शन पे आता हूं। उससे पहले मैं एक चीज और आपको समझा दूं कि मैंने वही ट्रायंगल फिर से बना दिया 1 2 3, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ड्यू टू द फोर्सेस देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड 1। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या होता है, हम किस पे काम करते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। और किस पे काम करते हैं? हम स्ट्रेन पे काम करते हैं। वी वर्क आउट ऑन स्ट्रेस आल्सो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेट द डिस्प्लेसमेंट इज u1 and v1. So u1 is the displacement in horizontal direction and v1 is the displacement in vertical direction, है ना। ये जो एलिमेंट है ट्राइंगल, ये कैसा एलिमेंट है? इट इज ए 2 डायमेंशनल एलिमेंट। 2 डायमेंशनल एलिमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में है, थर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। देयर आर 3 डायरेक्शंस। तो इन द x डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज u1, in the y direction the displacement is v1. Similarly for point 2 there is displacement u2 and v2 in the x and y direction respectively, and for point 3 also u3 and v3 as usual. So for the unknown point P, let the displacement is u in the horizontal direction and in vertical direction it is v. So I am interested in finding u and v. So I can write u equal to n1 u1 plus n2 u2 plus n3 u3. And similarly I can write v equal to, for the vertical displacement, n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3. So if u1, u2, u3 are known, then I can find u. I can find the displacement for any point within the triangle. And n1, n2, n3 are again the shape functions. So shape functions are useful in finding the horizontal displacement, in finding the vertical displacement. So shape functions are very, very important. So shape functions are useful here also in finding the x coordinate. Shape functions are again useful, and finding the y coordinate, again the shape functions are useful. So shape functions दोनों में useful हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए भी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए भी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए भी, और सिमिलरली फिर स्ट्रेन को फाइंड करना है तो आई विल टेक द डेरिवेटिव del u by del x
and for V I will take del V by del X. So these things will represent the strain for that particular point within the triangle. Okay, so once the strain is available, then I can go for stress. So stress is nothing, it is the multiplication, it is the product of the Young's modulus with the strain. So it is basically E epsilon, and epsilon is del U by del X in horizontal direction, and epsilon is del U by del X in vertical direction. So I can also calculate the stress in the different directions. After finding all these things, displacement, strain and stress, my structural analysis is completed. So कुछ आइडिया लग गया होगा आपको कि हम 2 डायमेंशनल एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशनल एलिमेंट में भी बहुत ही सिंपल एलिमेंट है 3 नोडेड ट्राइंगल। इट इज अ वेरी सिंपल एलिमेंट, है ना। जैसे 1 डायमेंशनल में लीनियर एलिमेंट बहुत ही सिंपल होता था, है ना। लीनियर से फिर आगे जाते थे तो क्वाड्रेटिक एलिमेंट आता था, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आता था, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। तो अभी हम बहुत ही सिंपल एलिमेंट पर काम कर रहे हैं, 3 नोडेड ट्राइंगल पर, है ना। 3 उसमें नोड हैं, ठीक है। U1 V1, U2 V2, U3 V3, ये उन नोडों के डिस्प्लेसमेंट हैं इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर किसी अननोन पॉइंट के लिए आई कैन फाइंड द U and V विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि N1 N2 N3 को कैसे करें, है ना। तो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो N1 N2 N3 फाइंड करने होंगे। तो लेट्स डू एन एक्सरसाइज how we will find the N1 N2 and N3. now the heading is safe function, वही हेडिंग है N1 N2 और N3 कैसे फाइंड करें फॉर 3 नोडेड ट्राइंगल, 3 नोडेड ट्राइंगल। अब इस N1 N2 N3 को फाइंड करने के लिए फिर आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड है सेरेंडिपिटी अप्रोच और दूसरी मेथड है लैग्रेंजी अप्रोच, है ना। ये थोड़ा हम लीनियर एलिमेंट पे भी हमने we have worked out on both the methods for the linear element. So for triangular element, we will start with the serendipity, then we will go for the Lagrange. So let's do this thing by serendipity approach. So I'm making a triangle. Okay, this is node 1, this is node 2, this is node 3. Now I am specifying the area coordinates. So I am specifying the area coordinates. So let me change the color. So area coordinates are 1, 0 and 0, 0, 1 and 0, 0, 0 and 1. So for this point, what is the value of R? R equal to 0. For this point, what is the value of R? R equal to 0. ठीक है, 2 के लिए भी R0, 3 के लिए भी R0। अब 2, 3 जो स्ट्रेट लाइन है, 2, 3 क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है ना। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो कोई एक जनरल पॉइंट मान लो मैं ले लूं, ठीक है। मान लो मैं मिड पॉइंट ले लूं, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एनीवन? लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। तो 0 + 0/2 0 जाएगा, 0 + 1/2 हाफ आ जाएगा, 1 + 0/2 हाफ आ जाएगा। तो इस मिड पॉइंट के लिए R की वैल्यू 0, S की वैल्यू हाफ, T की वैल्यू हाफ। तो कुल मिलाकर इस मिड पॉइंट के लिए भी R बराबर 0 है। तो आप ये जरूर अब अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि लाइन 2, 3 जो है उसके हर पॉइंट पर R = 0 है, उसके हर पॉइंट पर R = 0 है। मतलब पॉइंट भले आप चेंज कर दीजिए, R की वैल्यू फिक्स है, S और T बदलता रहेगा फॉर दी स्ट्रेट लाइन 2, 3। तो इस स्ट्रेट लाइन 2, 3 का मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, R = 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन R = 0, करेक्ट। अब देखिएगा, यदि मैं लाइन 1, 3 की बात करूं, या 2, 3 की बात तो हो गई, अब मैं 1, 3 की बात कर रहा हूं। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं? 1, 3, लाइन 1, 3। तो 1, 3 से मेरा मतलब ये वाली लाइन हुई, है ना। अब इस लाइन के लिए देखो, R = 1 पॉइंट 1 पर, पॉइंट 3 पे R की वैल्यू क्या है? 0। तो R तो चेंज हो रहा है,
अब s को देखो, s0 यहां भी और s0 यहां भी, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल टू 0, क्योंकि s कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 3 पे r कांस्टेंट है, 1 3 पे s कांस्टेंट है, एंड सिमिलरली फॉर 1 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई भी बता दो जरा। लाइन 1 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, T equals to 0. t इक्वल टू 0। ठीक है, तो थ्री नोडेड ट्राइंगल में 3 स्ट्रेट लाइन होती हैं, और तीनों स्ट्रेट लाइन के हमारे पास इक्वेशन है r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए, है ना, ये तीनों लाइन के ये 3 इक्वेशन। अब मुझे निकालना है सेव फंक्शन। तो देखिए सेव फंक्शन कैसे निकलेगा, बड़े आराम से यही निकाल देते हैं। तो देखिए n1 सेरेंडिपिटी अप्रोच ये कहती है कि आप यदि n1 निकालना चाहते हैं, लेट मी चेंज द कलर। देखिए अब मैं n1 का सेव फंक्शन निकालना चाहता हूं, तो n1, तो सेरेंडिपिटी अप्रोच में क्या करते हैं, एक स्केल फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्केल फैक्टर, या पहले भी लेते थे हम लोग जो लीनियर एलिमेंट पे काम कर रहे थे, है ना। तो n1 इक्वल टू स्केल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मल्टीप्लाइड बाय द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जब हम पॉइंट 1 पे काम करेंगे तो हम उन स्ट्रेट लाइंस को लेंगे जिनमें पॉइंट 1 नहीं आना चाहिए, हम उन स्ट्रेट लाइंस को लेंगे जिनमें पॉइंट 1 नहीं आना चाहिए। तो देखो अब 3 स्ट्रेट लाइन है, पहली स्ट्रेट लाइन 1 2 और 1 से पास होती है, दूसरी स्ट्रेट लाइन 1 3 वो भी 1 से पास होती है, तीसरी स्ट्रेट लाइन है 2 3 वो तो 1 से पास नहीं होती है। तो हम यहां पे ले लेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2 3, n1 इक्वल टू स्केल फैक्टर इनटू इक्वेशन ऑफ 2 3, है ना। अच्छे से समझ लो किस लाइन की इक्वेशन लेनी है, जो 1 से पास नहीं होती है, क्योंकि हम 1 का सेव फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यस और नो। n1 का इक्वेशन लिखना समझ में आ गया ना, स्केल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच आर नॉट पासिंग थ्रू 1, करेक्ट। अब देखिए मैं इस पे अब कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो अब पॉइंट 1 के लिए सेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उस पर सेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, n1 बराबर 1, n2 बराबर 0, n3 बराबर 0, ये सेव फंक्शंस की वैल्यू होती है ना। फर्स्ट पॉइंट के लिए पहला सेव फंक्शन 1 हो जाएगा, बाकी सब 0, तीनों का टोटल 1 होता है। तो अब यहां पे मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, है ना, अप्लाइंग कंडीशन फॉर पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 के लिए n1 1 होगा, SF अननोन क्वांटिटी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द 2 3 लाइन क्या है, 2 3 लाइन का इक्वेशन देखिए r इक्वल टू 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय r। इक्वेशन जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से है, r इक्वल टू 3, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन होता, तो हम क्या लिखते, r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वेशन की जगह पुट होती है। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड को क्या कर लेना है, 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखो इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आगे, 1 इक्वल टू SF मल्टीप्लाइड बाई R। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ये RST तो ये है ना, RST। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R फॉर पॉइंट 1, द वैल्यू ऑफ R फॉर पॉइंट 1 इज 1। So I am multiplying it by 1. तो SF इक्वल टू 1 by 1 that is 1. तो स्केल फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, है ना। अब यहां इसी इक्वेशन में पुट करिए, तो n1 इक्वल टू 1 स्केल फैक्टर की जगह, और लाइन का इक्वेशन क्या है, r। तो n1 इक्वल टू r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेव फंक्शन। ठीक है, थ्री नोडेड ट्राइंगल में n1 की वैल्यू क्या होती है, r के इक्वल होती है। ठीक है, 6 नोडेड ट्राइंगल में ऐसा नहीं होगा, 6 नोडेड ट्राइंगल में n1 की वैल्यू कुछ और होगी, है ना। 9 नोडेड ट्राइंगल में n1 की वैल्यू कुछ और होगी। ये n1 n2 n3 बदल जाते हैं, जैसे ही एलिमेंट चेंज होता है n1 n2 n3 बदल जाते हैं। आपने लीनियर में भी देखा था,
जब वन डायमेंशनल में देखा था कि लीनियर के लिए सेफ फंक्शन 1 माइनस जीटा बाई 2 1 प्लस जीटा बाई 2 होते थे, क्वाड्रेटिक के लिए सेफ फंक्शन जीटा इंटू जीटा माइनस 1 बाई 2 जीटा इंटू जीटा प्लस 1 बाई 2 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये 3 सेफ फंक्शन होते थे। तो एज द एलिमेंट चेंजेस द सेफ फंक्शन चेंजेस। तो पहला सेफ फंक्शन हमारा क्या निकल के आ गया, n1 इक्वल टू r। अब हम दूसरा सेफ फंक्शन निकालते हैं। देखिए दूसरा सेफ फंक्शन कैसे निकलेगा, मैंने वही ट्राइंगल बना लिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पॉइंटों के नाम क्या है, 1 2 3। अब मैं इस पॉइंट के लिए n2 मतलब n2 निकालना चाहता हूं, जनरल n2 क्या होगा। तो सेरेंडिपिटी अप्रोच कहती है कि आप एक स्केल फैक्टर, ठीक है, और स्केल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच आर नॉट पासिंग थ्रू 2। अब हम 2 पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन लेंगे जो पॉइंट नंबर 2 से पास नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही है। तो बताओ कौन सी लाइन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 3 यही आएगा, क्योंकि बाकी सब लाइन 2 3 जो है वो 2 से पास हो रही है, 1 2 भी 2 से पास हो रही है। तो आई विल टेक दिस, तो n2 इक्वल टू sf मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 3, इट इज s ओनली। मैं कंडीशन अप्लाई कर, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 के लिए r क्या होता है 0, s क्या होता है 1, है ना। इसके एरिया कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1 0, ये तो एरिया कोऑर्डिनेट्स है ना, तो RST तो यही हो गए। अब इस पॉइंट के लिए n1 n2 n3 क्या होंगे, n2 की वैल्यू 1 होगी, n1 की 0 होगी, n3 की 0 होगी, तीनों का टोटल होता है। तो अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, n2 इक्वल टू 1 sf इंटू s की वैल्यू क्या है इस पॉइंट के लिए 1, तो इसकी जगह भी 1 आ गया, तो sf की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, है ना, स्केल फैक्टर 1 आ गया। अब इस स्केल फैक्टर को पुट कर दीजिए इसमें, तो पुट करने से क्या होगा, आपको जनरलाइज्ड n2 मिल जाएगा 1 इंटू s, तो n2 बराबर s। ये हमारा दूसरा सेफ फंक्शन हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द थर्ड फंक्शन, तो बता दीजिए क्या आएगा, n3 इक्वल टू n1 equal to r, n2 equal to s, n3 equal to p. So this topic is covered कि 3 नोडेड ट्राइंगल के लिए सेफ फंक्शन क्या होंगे, बहुत आसान है, RST होंगे सब। पहला सेफ फंक्शन r होगा, दूसरा सेफ फंक्शन s होगा, तीसरा सेफ फंक्शन t के बराबर होगा। अब मैं इसी काम को आपको 6 नोडेड ट्राइंगल के लिए बताता हूं, ठीक है, 6 नोडेड ट्राइंगल। तो मैं जरा सा इसकी इंक क्लियर कर लेता हूं पहले। सिक्स नोडेड, ठीक है, तो हम देखिए 6 नोडेड ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड, ये पांचवा नोड और ये छठा नोड। अब बीच में कोई जनरल पॉइंट है x, y, तो जरा बता सकते हो x इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, एनीवन? देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, इसके क्या हैं x2 y2, इसके क्या हैं x3 y3। इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे x4 y4, इसके क्या होंगे x5 y5, ऐसे ही इसके क्या होंगे x6 y6। तो आई कैन राइट x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा n6 y6 तक, एंड n1 y1 n2 y2 तक जाएगा n6 y6 तक, ठीक है, x और y। अब यहाँ पे कितने सेफ फंक्शन है टोटल, देयर आर 6 सेफ फंक्शन, 6 नोड हैं तो 6 सेफ फंक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेफ फंक्शन होंगे, पहला सेफ फंक्शन n1 होगा, दूसरा n2 होगा, तीसरा n3 होगा, चौथा n4 होगा, पांचवा n5, छठा n6। 6 सेफ फंक्शन होंगे हर पॉइंट के लिए, है ना। पॉइंट इनकी वैल्यू बदल जाएगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी, होंगे 6 ही लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे कि हम पहले पॉइंट के लिए बात करें तो इसके लिए n1 कितना होगा 1 और n2 कितना होगा 0, n3 0, n4 0, n5 0, n6 0, ठीक है। पॉइंट 2 के लिए n2 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। पॉइंट 3 के लिए n3 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। पॉइंट 4 के लिए क्या होगा बताओ जरा, पॉइंट 4 के लिए n4 1 हो जाएगा, बाकी सब
0, 0.5 के लिए n5 1 हो जाएगा, 0.6 के लिए n6 1 हो जाएगा। अब बीच में कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए n1 n2 n3 n4 n5 n6 इन सब की वैल्यू अलग होगी, है ना। इस पॉइंट के लिए अलग होगी, इस पॉइंट के लिए अलग होगी, इस पॉइंट के लिए अलग होगी। ट्रायंगल के अंदर ढेर सारे पॉइंट है ना, लाइन पे भी ढेर सारे पॉइंट हैं, मिड पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे। तो हर पॉइंट के लिए सेफ फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो सेफ फंक्शन कुछ इस तरह का होता है कि वो उस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इस तरह से रिलेट करता है, उसी तरह से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी रिलेट करता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा, n6 u6। सिमिलरली आई कैन राइट n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस डॉट 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 n6 y6। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो अब क्लास का टाइम हो रहा है। अब मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं क्या बताने वाला हूं, मैं आपको इन छहों का डेरिवेशन बताने वाला हूं। n1 कैसे निकालेंगे, n2 कैसे निकालेंगे और इनकी क्या वैल्यू आएगी। जैसे अभी 3 ट्रायंगल की वैल्यू क्या आई है, n1 बराबर r आई है, n2 बराबर s आई है, n3 बराबर t है। तो 6 नोटेड में देखना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मतलब कुछ डिफरेंट फंक्शन मिलेगा। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, यहां तक कोई डाउट है? सागर शर्मा, यस सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर एकदम। आपके उधर सब ठीक है राजस्थान में? हाँ सर ठीक ठाक ही है, अभी तो नॉर्मली चल रहा है। अच्छा, ओके। यस सर। और अंकुर चौहान, आप कैसे हैं? सर सही है सर। सही है। आपकी जॉब वर्क फ्रॉम होम चल रही है? नहीं सर, ऑफिस चल रहा है। क्या जाना पड़ता है? जाना पड़ता है सर। जाना पड़ता है, अच्छा अच्छा। मतलब फरीदाबाद में तो बुला रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में भी बुला रहे हैं वो लोग? सर बीच में हुआ था, फिर दोबारा से मतलब शुरू कर दिया बुलाना। दोबारा से शुरू कर दिया। चलिए, तो एक तरह से आपकी एमटेक तो अब ऑनलाइन ही हो गई पूरी है। सभी की ऑनलाइन ही हो गई पूरी टोटल एमटेक एक तरह से। हाँ सर। बढ़िया है। आप चाह भी रहे थे ना, सो इट्स गुड। हाँ सर, इसमें थोड़ा ये है कि दोनों चीजें जल्दी मैनेज हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। और कौशल यादव, आप कैसे हैं? कौशल यादव प्रेजेंट तो हैं। चलिए, लवकेश सिंह, आप? सर बढ़िया, एकदम मस्त। अच्छा, बहुत बढ़िया। घर परिवार में सब अच्छे हैं? यस सर, सब अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोहिनी देवी, आप कैसे हैं? प्रेजेंट तो आप भी हैं। रोहित कुमार सिंह, आकाश खटवानी, आपका तो रिस्पॉन्स आ रहा था बीच में, है ना? यस सर। हाँ, सब बढ़िया है। आगरा में सर सब बढ़िया ही आगरा है तो एक जैसा ही है लगभग, है ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल, बढ़िया। प्रत्युष से तो मेरी बात हुई है बीच में भी, है ना? प्रत्युष इज नाइस। यस सर। एंड हेमंत परिहार, आप कैसे हैं? बहुत दिनों में, मतलब बहुत दिनों से इंटरेक्शन नहीं हुआ आप सबसे, तो मैंने कहा थोड़ा सा बात कर ली जाए आपसे, है ना? हेमंत, आप कैसे हैं? सर हेमंत तो हो गया था। अच्छा, हेमंत का हो गया, अब रह गया है रोहित का, रह गया मोहिनी का, रह गया और कौशल का रह गया। हाँ कौशल, हाउ आर यू? आप कैसे सर? मैं भी ठीक हूँ। मैं बीच में कोविड पॉजिटिव, मेरा आरटीपीसीआर आ गया था पॉजिटिव, तो होम आइसोलेशन में रहा मैं, लेकिन अब मैं आई हैव रिकवर्ड। और सचिन शर्मा है क्या क्लास में? सचिन शर्मा नहीं है ना? चलिए, ठीक है, तो नहीं है। 1 o'clock मिलते हैं दोबारा, हैं? कोई डाउट तो नहीं है आपकी? नो सर। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।